Okay, now today we will going to discuss the second lecture of this chapter is heredity and evolution. In the previous lecture we have discussed all about the terminology related to genetics, that is heredity, variation, types of variation and all the different terms related to genetics. Now since we all know that the genetics which has been initiated or originated, this branch of biology, who have actually found this term or who actually have found this science is Gregor John Mendel. So father of genetics is Gregor John Mendel. Fine. So Mendel is known as father of genetics. He was the scientist, or he was a person who actually experimented on garden pea plant and elaborate and revealed all the things about the gene, about the DNA or about the pattern of inheritance. Basically, in his time, if we talk about the life history of this Mendel, Mendel was actually a mathematician. Mendel, he was son of a gardener. Basically, वो एक gardener का बेटा था. So that is why he had a knowledge, certain knowledge about the plants also. उसको botany की knowledge थी, plants की knowledge थी, क्योंकि वो एक gardener का बेटा था. Then he was also a mathematician or a physicist, mathematician, fine, or a physicist. That means he teaches maths in particular college, and along with it he was a monk or a priest in a church in Austria. He belongs to country Austria, and he also worked as a father in a church, and along with it he was also working as a lecturer of mathematics in a college. Now, since what led him to create interest in working in this particular field, basically Mendel was observing the field of garden pea plant at the back of his church where he worked as a monk or a priest. वो अपने चर्च के पीछे एक गार्डन पी प्लांट की खेती देखता था कि उस गार्डन पी प्लांट का जो बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी है और बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे वो हर जनरेशन में या हर टाइम उसको बहुत अलग अलग दिख रहे थे. लाइक एक जनरेशन में अगर उसे पी प्लांट के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर का कोई एक वैरायटी दिख रही थी तो दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर की दूसरी वैरायटी नज़र आ रही थी, तो तीसरे में कोई और वैरायटी नज़र आ रही थी. दैट मीन्स सर्टेन थिंग्स कि किस तरह से कि कैरेक्टर्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो उसको जानने की इच्छा हुई. दैट मीन्स द ग्रोथ ऑफ garden pea plants in the field at the back of his church led him to work on the garden pea plant, and when he experimented on the pea plant, then he revealed so many things about the pattern of inheritance. That means he just experimented to reveal or to conclude about the things ki how the inheritance taken place or how the characters transferred from one generation to another generation. So basically, Mendel worked on garden pea plant which botanical name is Pisum sativum. Fine. This is very important. The botanical name of the pea plant is generally asked. That garden pea plant में जो Pisum sativum नाम है, this garden pea plant पे उसने work किया था, and when he started working on that pea plant, he knew or he worked on different characters of the garden pea plant. Now the question arises, why he selected for his experiment as garden pea plant? कि उसने अपने garden pea plant को ही क्यों select करा अपने experiments के लिए? तो reasons, there are certain reasons for selecting garden pea plant. What are those reasons? First, this particular plant has a very short life cycle. This is an annual plant. That means
in this particular plant, in within a year only, its life cycle gets complete, and in 3 to 4 months only the seed gets produced. So this has a very short life cycle. तो जो मेंडल इस पे काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, उसको रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे थे. अगर उसको कोई और प्लांट उसने चूज किया होता जिसकी लाइफ साइकिल बड़ी होती, तो उसको रिजल्ट्स बहुत लेट मिलते. सो ही एक्चुअली यूज द गार्डन पी प्लांट ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट, सो दैट द रिजल्ट्स कुड हैव बीन arise earlier. Second reason for selecting this garden pea plant, क्यों उसने इसको चूज किया था? It is easy to cultivate in any condition. That means it is very easy to cultivate this garden pea plant. इसको कहीं पे भी easily उगाया जा सकता है, किसी भी climatic condition, किसी भी soil में. बहुत ज़्यादा rigid conditions की requirement इसको नहीं होती है. Third reason is many contrasting characters. इसमें बहुत सारे contrasting character देखने को मिले इसको. That is, he observed more than 7. He observed actually mainly the 7 contrasting character that एक ही प्लांट के अंदर इतने सारे कैरेक्टर है और उन कैरेक्टर्स की भी उसको अलग अलग वैरायटी देखने को मिली थी. जैसे अगर मैं बात करूं तो ही ऑब्जर्व स्टेम हाइट. स्टेम हाइट दैट मीन्स गार्डन पी प्लांट की जो स्टेम थी वो उसकी हाइट जो थी उसकी भी वैरायटी मिल रही थी उसको, टॉल एंड ड्वार्फ. देन उसने देखा कि सीड का शेप अलग है, सीड के कलर अलग है, पोड शेप अलग है, पोड कलर अलग है. पोड मीन्स मटर का जो छिलका होता है, ठीक है. देन उसने देखा कि फ्लावर की पोजीशन अलग है, फ्लावर के कलर अलग है. फाइन. सो देर आर सो मेनी कैरेक्टर ही ऑब्जर्व्ड इन द पर्टिकुलर single type or single species of a plant. That's why he selected the garden pea plant. Why? Because he would have more than one option or more than many option to study, ताकि उसके पास एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल थे एक ही स्पीशी प्लांट में. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बीइंग अ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है. It is easier to follow cross pollination to obtain fertile results. That means एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होने के बावजूद इसके अंदर वो क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहा था. दैट मीन्स वो अपने इंटरेस्ट के दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ पी प्लांट के बीच में जब वो क्रॉसिंग करवा रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहा था, तो भी उसको रिजल्ट्स बहुत फर्टाइल मिले, तो भी उसको सीड ऑब्टेन्ड हुए. और उस सीड को जब वो जर्मिनेट करता था तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारे मतलब कैरेक्टर्स जो भी डिफरेंट वेरिएशंस उसको नज़र आए थे, उससे वो बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहा था. सो ड्यू टू ऑल दीज मेन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ही एक्चुअली सेलेक्टेड द गार्डन पी प्लांट. दैट इज इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, ईजी टू कल्टिवेट है, कल्टिवेट बहुत ईजीली कर पा रहा था, किसी भी कंडीशन में उसे ग्रो कर पा रहा था. बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है इसके अंदर. ऑलमोस्ट ऑल दी कैरेक्टर्स वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द टेबुलर फॉर्म ऑल्सो. एंड ऑल्सो द फोर्थ रीजन इज कि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होने के बावजूद ना, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट का मतलब होता है कि इस प्लांट के अंदर बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर. दैट मीन्स द सेम फ्लावर have both male and female reproductive organ. That means in that case plants generally follow autogamy, self pollination follow करता है plant और variation होने के chances कम होते हैं. But in such self pollinated plant also Mendel was able to perform the cross pollination to bring more and more variation and to see the results of by crossing between two different variety of pea plant ki what type of character will then going to transfer into the next generation. So basically the main aim of Mendel to work is to study only the pattern of inheritance. वो सिर्फ समझना चाहता था कि किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. वो रीज़न नहीं समझ पाया था अपने काम में, या जो भी उसने काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसको कोई भी रीज़न नहीं पता चला. ही डिड नॉट एबल टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड द इनहेरिटेंस, बट ही yes definitely he found the pattern. Basically he found the pathway or the pattern of inheritance from one generation to another generation.
Now the reason is कि why he did not able to find out the reason behind the inheritance is because तब तक माइक्रोस्कोप नहीं डिस्कवर्ड हुए थे. जब मेंडल काम कर रहा था तब तक कोई भी माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड नहीं हुआ था. तो वो जो भी कर रहा था या जो भी उसका एक्सपेरिमेंट था, it was all based on crossing between the two different plant, and that was done by him manually only. There was no device, there was no microscope was there with him to see or to observe the chromosomal movement or to see the things which are happening inside the cell. वो उसके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो उसको ऑब्जर्व कर सके, या उसके पास ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं था कि वो जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है. बट जो भी वो रिजल्ट्स दे रहा था उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे उसकी बहुत सारी प्रिंसिपल्स और बहुत सारे कंक्लूजन बहुत हद तक सही प्रूव हुए थे. नाउ दिस वी हैव डिस्कस्ड दैट हु वाज मेंडल एंड why he selected the garden pea plant for his experiment and what led him to work in this field of genetic being a mathematician. वो एक mathematician था लेकिन उसने अपना काम एक बायोलॉजी फील्ड में किया था क्योंकि उसका इंटरेस्ट बायोलॉजी में था, बिकॉज वो एक गार्डनर का भी बेटा था तो उसको बहुत सारी प्लांट्स की भी नॉलेज थी. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस कि मेंडल व्हेन अप टिल व्हेन ही रिमेन अलाइव, जब तक वो जिंदा था तब तक उसको उसके काम का क्रेडिट नहीं मिला था. लाइक स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट हिज हिस्ट्री ओनली, अबाउट हिज लाइफ हिस्ट्री ओनली, कि जब तक उसने काम किया ही कॉन्ट्रीब्यूटेड हिज 7 to 10 years of his life by on working on this garden plant, and he gave basically important principles to explain the pattern of inheritance. But उसका वर्क रिवील नहीं हुआ, उसको उसके काम का क्रेडिट नहीं मिला, एंड इसीलिए और उसके काम का क्रेडिट उसको क्यों नहीं मिला उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन थे. देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड कि व्हाई ही डिड नॉट गॉट द क्रेडिट फॉर हिज डिस्कवरी इन द जेनेटिक्स. उस रीजन उसके रीजन है मेनली रीजंस फॉर हिज अनसक्सेस. The reason for his unsuccess, that means उसके results reveal क्यों नहीं हुए, was basically first important reason is कि जब उसने experiment किए, जब उसने experiment कर रहा था वो टाइम ऐसा था जब पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया डार्विन की थ्योरी पे काम कर रही थी या डार्विन की थ्योरी पे सबका फोकस था. दैट वाज द ओरिजिन और द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज थ्योरी. तब डार्विन वाज द मेजर और द मेन बायोलॉजिस्ट और मेन साइंटिस्ट जिसके ऊपर पूरी वर्ल्ड का पूरा फोकस था कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, किस तरह से स्पीशी इवॉल्व हो रही है. उस समय पे मेंडल पे इसलिए कोई किसी का ध्यान नहीं गया. दूसरा रीज़न ये है, सो फर्स्ट रीज़न इज बेसिकली एट दैट टाइम वर्ल्ड was busy in Darwin's discoveries, so he did not able to influence anybody towards his experiments. Fine. Second reason was that he published his work in less circulative paper. उस टाइम पे ऑब्वियसली जब पेपर पब्लिश हो रहा था तो उसके रिजल्ट जिस भी पेपर में उसने पब्लिश करे वो बहुत ज़्यादा लेस सर्कुलेटिव हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा लेस सर्कुलेटिव. दैट मीन्स वो पेपर बहुत हद तक किसी के पास नहीं गया, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक वो पेपर नहीं पहुंचता था क्योंकि वो पेपर ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं थे. तो उसने जिस भी पेपर में पब्लिशमेंट करा उसके रिजल्ट्स इसलिए बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाए. थर्डली, ही हैड नो एविडेंस फॉर हिज थ्योरीज. जो भी थ्योरी उसने एक्सप्लेन करी या जो भी थ्योरी उसने समझाई उन थ्योरीज का उसके पास कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं था, बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं था. उसने जो भी प्रूफ किया अपने वर्किंग के बेसिस पे प्रूफ किया, जो भी प्रूफ किया या जो भी रिजल्ट्स दिए थे उस रिजल्ट्स के बेसिस पे उसने जो थ्योरीज एक्सप्लेन करी उसके लिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं था क्योंकि उस समय तक माइक्रोस्कोप नहीं थे.
तो एक सेल्यूलर लेवल पे किस तरह से इनहेरिटेंस हो रहा है, कैरेक्टर किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, उस चीज को वो नहीं समझा पाया था या वो उस चीज को प्रूव नहीं कर पाया था. एंड द फोर्थ रीजन इज, since he was a mathematician, so he explained his results in form of statistical values. बेसिकली उसने एक मैथमेटिशियन था, तो उसने अपने जो भी रिजल्ट्स एक्सप्लेन किए थे वो स्टेटिस्टिकल डेटा फॉर्म में एक्सप्लेन किए थे, मैथमेटिकल वैल्यू फॉर्म में. ही यूज्ड एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी रेशियो. ही गेव रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, कि दिस मच percentage of a character has been appeared in this particular generation, so this percentage of the character will going to appear in the next generation. So he explained the probability of appearing that particular character in any generation. So he gave his results in the form of mathematical value which was not being understood by all the biologists. तो जब वो गया था अपने रिजल्ट्स को दिखाने, जो भी सीनियर साइंटिस्ट थे, तब उनको इसके रिजल्ट्स को का जो नॉलेज था उसको उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सब बायोलॉजिस्ट थे और ये मैथमेटिशियन था और इसने अपने रिजल्ट्स एक मैथमेटिकल वैल्यू फॉर्म में दिए थे. सो दीज आर द सर्टेन रीजन कि जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसके जो रिजल्ट्स थे उनके लिए उसको क्रेडिट नहीं दिया गया, नहीं मिला. नाउ later on when he died in 1900, after 1900, basically जब ये मरा था, when he died in 1900 was the year जब इसके 3 स्टूडेंट्स थे, that was Karl Correns, Hugo de Vries and von Schirmack. They belongs to 3 different countries, Austrian, Holland and Germany. ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसकी थ्योरीज पढ़ी, इसके जो भी पेपर्स थे जो इसने पब्लिश किए थे, when he revised all those, when those 3 scientists revised them, तब उनको इनके सारे थ्योरीज बहुत हद तक सही लगी, क्योंकि तब 1900 के बाद माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर्ड हो गए थे. एंड व्हेन दे ऑब्जर्व्ड ऑल द थिंग्स इनसाइड द सेल आल्सो थ्रू माइक्रोस्कोप, तब उन तीनों साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरीज की रीडिस्कवरी कराई थी. एंड देन ही गॉट द क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड देन ही कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. और तब इसको नोबेल प्राइज का अवार्ड, इसके जब वो मर गया था एक्चुअली, देन ही गॉट द क्रेडिट फॉर हिज डिस्कवरी. सो अब क्वेश्चन आता है कि ये क्यों सक्सेसफुल रहा, या इसके थ्योरीज किस हद तक सक्सेस थी या क्यों बहुत हद तक सही थी. तो रीजन फॉर हिज सक्सेस इज only because he studied each character at a time. What does it mean? Basically इसके सक्सेस का कारण ये भी है कि इससे पहले भी बहुत साइंटिस्ट लोगों ने इस फील्ड पे काम किया, लेकिन वो क्या करते थे कि जब वो 2 डिफरेंट पी प्लांट के या 2 डिफरेंट प्लांट्स में 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में जब क्रॉसिंग कराते थे, तो वो एक साथ उनके सारे कैरेक्टर्स की स्टडी करते थे, और जब वो ऑन पेपर उसकी क्रॉसिंग के रिजल्ट्स लिखते थे तो वो कंफ्यूज होते थे और वो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं आते थे. बट इसने क्या किया, इसने हर बार जब भी क्रॉसिंग इसने कराई, क्रॉसिंग कराते वक्त इसने सारे कैरेक्टर को कंसिडर नहीं किया, इसने हर एक कैरेक्टर को कंसिडर किया, मतलब एक एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी करा और सिर्फ उसी कैरेक्टर को लेके इसने उनके रिजल्ट्स निकाले या उसकी वैल्यू निकाली, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, कि कितना वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के अपीयर होने की क्या परसेंटेज या क्या प्रोबेबिलिटी एक जनरेशन में, तो दूसरे जनरेशन में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अपीयर होने की. सो स्टडीड एवरी कैरेक्टर वन एट अ टाइम. Fine, that is why he got the successful result, and that is why इसके results और theory बहुत हद तक सही prove हुई थी, right? So the most important reason for his success is this only, and mainly जब इसके results revealed हो गए थे तब इसको credit दिया गया, and तब से इसको ही हम genetics का father consider करते हैं. Now the most important thing is कि what characters he studied on garden pea plant.
Now he studied about different characters. What characters? These characters do have different alternative form. That means he found by working on those pea plant only, by working on the pea plant, that there are character which are present has two alternative variety, and he gave the term variety as trait. उसने variety को किस नाम से बोला? Trait नाम से बोला. और character को, that means like for example, if height is a character, stem height, here we are talking about stem height. So height is a character, but this height has two trait, two variety, that is tall and dwarf. Now height has two variety, tall and dwarf. So this tall I have written under the dominant trait and dwarf I have written under the recessive trait. That means dominant and recessive, the meaning of this word we have discussed in the previous class. The dominant trait is a trait which always appear in every generation. That means in presence of the dominant allele, recessive trait cannot express. So recessive is the trait which do not express in each and every generation, and it express only in its homozygous condition. तो रिसेसिव ट्रेट वीक टाइप का ट्रेट है और डोमिनेंट ट्रेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का ट्रेट है जो हमेशा अपीयर होगा, हर जनरेशन में अपीयर होगा. सो टॉल इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव. सिमिलरली वी हैव सीड शेप. Seed shape have dominant trait round and seed shape recessive is wrinkled. So round is dominant and wrinkle is recessive. Thirdly, seed color. Yellow is dominant and green is recessive. Then pod shape. Inflated. Inflated means इस छिलके का जो वॉल है वो बहुत ही स्मूथ है, स्मूथ वॉल है इसकी, that is inflated, and here it is constricted in this manner. Then the character pod color. Green is dominant and yellow is recessive in case of pod color. Flower position. Flower position, axial is dominant along the axis, that means this, and terminal, that is at the tip, which is recessive. And last, flower color, that is here it's violet is dominant and white is recessive. Now we have also the symbolic representation of these trait. Like dominant trait we always write in the form of capital like this, while recessive is always be written in the form of small letter. That means the letter which we use for dominant trait, that letter should be written in their small letter for recessive trait, right? Whenever we talk about any particular trait, for example, if I am talking about tall trait, tall variety, so tall is considered, is known as phenotype. Phenotype means the character which are appearing, जो हमें दिख रहा है, जो express हो रहा है, the external appearance of a particular trait is known as phenotype. लेकिन जब इस phenotype को हम represent करते हैं, genetically representation या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं या फिर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं किसी ट्रेट का, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप. सो इट्स जीनोटाइप इज कैपिटल T और कैपिटल T small t. It has two genotype because the tall is a dominant trait, so it can represent in their homozygous condition as well as in their heterozygous condition. This is homozygous and this is heterozygous condition. So tall is considered as phenotype, but the genotype, it has two types of genotype, that is in their homozygous and in their heterozygous. Clear? And similarly, dwarf is phenotype, but its genotype is small t only because dwarf is a recessive trait and it always appear only, the genotype will represent only in their homozygous condition. So these are the contrasting character which Mendel studied on pea plant. Now we will going to discuss about the Mendel's method of experiment, how he used, what method he used.
Mendel's method of experiment. Now Mendel's method of experiment, that means what steps he used to reveal or to bring variation, or you can say he just wanted to know actually that how the characters are transmitting. So for that what he did, he was trying to cross between two different variety of pea plant, and two different variety means he considered for every crossing a particular character at a time. For example, if he consider flower color, if he consider different flower color for two different parent pea plant, like एक parent pea plant लिया उसने violet color flower आ रहे हैं उसमें, और एक pea plant लिया उसने जिसमें white color के flower आ रहे हैं, तो जब उसने उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराई तो उसका क्या रिजल्ट आया, फिर उस रिजल्ट से जो भी उसकी फर्स्ट जनरेशन में जो भी उसका रिजल्ट आया उसको उसने फिर क्रॉस कराया किसी और वैरायटी ऑफ पी प्लांट से, फिर उसके क्या रिजल्ट आए। तो वो देखना चाह रहा था कि किस तरह से या क्या पैटर्न है इनहेरिटेंस का, या किस तरह से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का क्या प्रोबेबिलिटी है अपीयर होने का हर जनरेशन में, और किस तरह के कॉम्बिनेशन से, पैरेंटल कॉम्बिनेशन से किस तरह का ट्रेड या कैरेक्टर अपीयर होगा। सो ही जस्ट ट्राइड टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ द मेंडल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ही यूज्ड वेरियस स्टेप्स फॉर इट। फर्स्ट स्टेप इज selection of true or pure variety of parent pea plant. Now what does mean by true or pure variety of parent pea plant? Now if he selected two variety, he choose character, stem, height, and he selected the two variety of it, that is tall and dwarf. Now which variety we call it as a pure variety? If I represent the tall phenotype with its genotype as either we represent it with capital T or represent with capital T small t. These are the two ways to represent the tall phenotype, because tall is dominant trait. But to represent dwarf, we have only one genotype, small t, because it is a recessive trait which can express only when it comes in their own homozygous condition. Now, by looking to their genotypes, which genotype we consider as a pure variety, that is capital T and this small t. So these genotype having pure allele for a particular dominant trait or a particular recessive trait only, that means you can say if any trait present in their homozygous condition, then we consider it as a pure or a true variety. अब भाई मेंडल ने देखा है कि वो दिख तो उसको बिल्कुल टॉल रहा है, कोई भी पी प्लांट जो उसको दिख रहा है वो दिख तो टॉल रहा है, लेकिन उसको दिखने से थोड़ी पता चल रहा है कि उसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जीनोटाइप है, वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। क्योंकि टॉल के केस में तो यही है कि इधर वो या तो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है या फिर हेट्रोजाइगस में प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर होमोजाइगस में है तो ही वो टॉल प्योर वैरायटी है, और अगर हेट्रोजाइगस है तो वो प्योर वैरायटी नहीं है। सो अब वो कैसे पता करे कि उसको तो क्योंकि सिर्फ प्योर वैरायटी लेनी थी, क्योंकि उसे सिर्फ टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉसिंग करानी थी, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो देख सके कि कौन सा ट्रेट अपीयर होगा या क्या कैरेक्टर अपीयर होगा। अब उसके लिए इसने क्या करा कि आउट ऑफ द पॉपुलेशन उसने जो भी फील्ड थी, खेत था पी प्लांट का, उसमें से एक टॉल पी प्लांट लिया, उस टॉल पी प्लांट का जो भी सीड था उसको उसने सेलेक्ट करा, कलेक्ट करा, और उसने अपना खुद का एक फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करा हुआ था या बना रखा था, सॉइल वॉइल सब मिक्स करके, मतलब कल्टिवेशनल एक्सपेरिमेंटल फील्ड था उसका वो। अब उसने उस टॉल पी प्लांट को वहाँ पे ग्रो कराया। नाउ वो उसको क्या करा रहा था, उसकी सेल्फिंग करा रहा था, मतलब उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहा था। अब वो उस पी प्लांट को सीड उसने ग्रो कराया, फिर उसने उसकी जनरेशन ऑब्टेंड हुई, फिर उससे जो भी सीड जर्मिनेट हुआ
या सीड जो भी ग्रो हुआ उससे फिर दूसरा पी प्लांट उसकी नेक्स्ट जनरेशन ग्रो करा दी, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन क्रॉस करा दी। इस तरह से वो 6 to 7 जनरेशन तक सेल्फिंग करा के वो पी प्लांट को ऑब्जर्व करता रहा। लेकिन हर बार जब हर जनरेशन में उसको स्टेम की हाइट उस पी प्लांट में टॉल ही नजर आ रही थी, तब वो कंफर्म हुआ या श्योर हुआ या अश्योर हुआ कि इसमें ड्वार्फ की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इस जनरेशन में या ये वाला जो पी प्लांट का मैंने सीड लिया है इसके अंदर कोई भी ड्वार्फ का अलील या ड्वार्फ की इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड देन ही कंसीडर्ड इट एज अ प्योर variety of tall pea plant. And for dwarf actually he did the same thing, but later on he got to know that dwarf does not have any mixing or dwarf does not present in their heterozygous condition, so it is always considered as a pure variety. So this is the very first method or very first step of Mendel for performing his experiment, that is selection of the true variety of parent pea plant. Second step is crossing between two selected parent pea plant, and this is done by the method known as artificial hybridization. Now as we all know that pea plant is a self-pollinated plant. So self-pollinated plant means इसमें self pollination ही होगा, और अगर self pollination होगा तो फिर वेरिएशन कैसे आएगा, तो फिर वो जो टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉसिंग करवाना चाहता है वो कैसे होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में तो उसी प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट दैट इज पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा पे खुद ही गिर जाता है, और वो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। तो अगर टॉल पेरेंट का ही के अंदर ही पॉलिनेशन हो गया और उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो तो फिर से टॉल ही अपीयर होगा। लेकिन मेंडल ऐसा नहीं चाहता था, वो चाहता था कि टॉल और ड्वार्फ के बीच में पॉलिनेशन हो, दैट मीन जो पेरेंट उसने सेलेक्ट करे थे उन्हीं के बीच में वो क्रॉसिंग करवाना चाहता था। फॉर दैट ही परफॉर्म्ड द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। नाउ व्हाट इज दिस टेक्निक? दिस टेक्निक इंक्लूड्स टू स्टेप्स, emasculation and bagging. Now what is this? Since we all know that this is a self-pollinated plant, that means it do have their own this in the same flower it has the stamen, male reproductive unit, and its carpel, the female reproductive unit, both. So when he used two parent pea plant, like for example this he considered tall and this he considered as a dwarf. Fine. Now if it does self pollination then इसका पोलन ग्रेन इसी पे गिर जाएगा, लेकिन वो ऐसा कराना नहीं चाहता था। तो इसने क्या करा? He cut this anther part of tall parent plant. इसने इस एंथर पार्ट को जो टॉल के पास है उसे क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब एंथर ही अगर रिमूव हो गए, सारे ही एंथर रिमूव कर दिए, उस प्लांट में जितने भी एंथर थे स्टेमन पे उसको सबको कट कर दिया, और अगर वो एंथर ही कट हो गया तो अब इसका पोलन ग्रेन तो इस पे आके गिरेगा ही नहीं, क्योंकि उसका एंथर ही नहीं है, तो पोलन ग्रेन तो एंथर के अंदर होता है। नाउ दिस मेथड इज नोन एज emasculation, दैट इज रिमूवल ऑफ एंथर। तो इसने क्या करा? पहला स्टेप क्या? टॉल पी प्लांट में से एंथर रिमूव करा। आप ड्वार्फ में से भी कर सकते हो, दोनों ऑपोजिट भी कर सकते हो, ड्वार्फ में से एंथर रिमूव कर दो, ठीक है, लेकिन रिजल्ट फिर भी वही आएंगे प्लांट के केस में। नाउ अब क्या किया इसने? इस स्टिग्मा को, जो स्टिग्मा यहाँ पे है, इसको थोड़े टाइम के लिए बैग से कवर कर दिया। ही कवर्ड इट विद द बैग एंड दिस कवरिंग विद द बैग इज नोन एज बैगिंग। कवरिंग ऑफ स्टिग्मा with a bag is known as bagging. Why he did it? Because this bagging, due to this bagging, he prevented the dusting of pollen grain from any other source. कहीं और का pollen grain कहीं आके इस पे ना गिर जाए, इसलिए इसने इसको कवर कर दिया जब तक कि ड्वार्फ का pollen grain रिसीव करके यहाँ नहीं ले आता। तो इसने क्या करा? अब इसने इस ड्वार्फ पेरेंट प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन को ब्रश से कलेक्ट करा
और इस पे सारा स्प्रेड कर दिया. दैट मीन्स स्टिग्मा ऑफ टॉल प्लांट के पे इसने स्प्रेड करा. एंड देन आफ्टर ही अगेन कवर इट विद अ बैग. राइट. तो व्हाट आर द स्टेप्स ही हैज यूज्ड? द रिमूवल ऑफ एंथर. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Then second step, the covering of stigma with the bag. And the third step is dusting of pollen grains from one parent to stigma of other parent. And the last step is then rebagging, जिसे हम बोलते हैं. This is rebagging. Fine. तो वापस से उसने बैग से कवर कर दिया. अब वापस क्यों बैग से कवर कर दिया? रीबैगिंग क्यों करी? सो दैट until and unless the pollen grain germinate to form pollen tube and ensure the process of fertilization inside the ovule present in the ovary. ताकि जब तक सीड नहीं बन जाता. तो जब सीड बनेगा तभी तो उसके अंदर टॉल और ड्वार्फ के कॉम्बिनेशन के या क्रॉसिंग के रिजल्ट्स ऑब्टेन होंगे या रिजल्ट्स उनके कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी. राइट. So this is the second step used by Mendel. That is, this is a very main step actually through which he actually obtained different results. And the third is later on, whenever the seed obtained, he selected those seeds, selection of seed, and study the seed after germinating the seed into the soil. Then he observed that what type of character appear in the generation. Fine. So this is the method of methodology which Mendel used. अब यही मेथड हम हर बार यूज करेंगे, हम हर क्रॉस में यूज करेंगे. तो अब इसने जो सबसे पहला क्रॉस मेंडल ने किया था, दैट वाज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. उस क्रॉस में भी उसने ये मेथड यूज किया था. तो हम उसके बारे में अब देखते हैं. Now mono hybrid cross. Now what is this mono hybrid cross? Mono hybrid का मतलब क्या होता है? This is the crossing between two parent with difference of one character. That means जब उसने एक क्रॉस कराया, तो जब उसने क्रॉसिंग कराई तो उस क्रॉसिंग के अंदर उसने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया फॉर स्टडी. दैट मीन्स जब उसने क्रॉसिंग कराई दो पैरेंट पी प्लांट के बीच में, लेकिन क्रॉसिंग कराते वक्त ही स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट दैट टाइम, और उसी कैरेक्टर को लेके उसने उसके रिजल्ट ऑब्टेन करे. सच क्रॉस इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए उसने कैरेक्टर का जो यूज करा था वो करा था स्टेम हाइट. नाउ एज वी ऑल नो, स्टेम हाइट के उसने दो ट्रेट लिए, टॉल एंड ड्वार्फ. टॉल का जो जीनोटाइप लिया उसने कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ का जो जीनोटाइप लिया उसने स्मॉल टी लिया. नाउ ये जो इसने पेरेंट लिए उसको उसने क्रॉस कराया, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी. सो दिस इज नोन एज पेरेंट. फिर इसने इसके गैमीट्स बने होंगे इसके अंदर. नाउ वी ऑल नो दैट गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेल डिविजन प्रोसेस meiosis. And during formation of gamete, what happened? The diploid set of chromosome gets segregate or separate into different gamete. So if this capital T I have written here, it means it is a representation of the trait in the diploid form. That means in the diploid state. So whenever the gametes form, these pair of allele obviously must have been separated enter into two different gametes. So here these are the gametes. And gamete should always be written in circle because it has been separated. The allele which we have written together, whenever we write it in the gametes, inside the gamete, it should be separated. Now, when the crossing takes place in between them, what happened? This gamete or this gamete, when crossed with these gamete, it is always producing this particular type of genotype, that is capital T small t. But उसको genotype तो नजर नहीं आ रहा था. उसे क्या नजर आ रहा था? उसका phenotype नजर आ रहा था, which appears as a tall.
यहाँ पे इसको 100% मतलब सारी की सारी पॉपुलेशन जो पहली जनरेशन में मिली थी वो थी 100% टॉल पॉपुलेशन. दिस F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन. फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फिलियल मतलब ऑस्ट्रियन लैंग्वेज में चाइल्ड होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, क्योंकि ही बिलोंग्स टू कंट्री ऑस्ट्रिया, तो इसने वहाँ की लैंग्वेज यूज करी थी अपने रिजल्ट्स में. नाउ F1 जनरेशन में जब उनको रिजल्ट मिला कि 100% टॉल, तो वो समझ नहीं पाया कि वाई दिस रिजल्ट हैज बीन ऑब्टेन although he crossed the dwarf variety with the tall variety of parent pea plant. Now उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ऐसा क्यों हुआ और dwarf trait का appearance क्यों नहीं आया. Then what he did to satisfy his curiosity or reason is उसने इसी F1 जनरेशन को फिर से क्रॉस कराया. दैट मीन्स इसने क्या करा, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेल्फिंग? क्या होता है सेल्फिंग का मतलब? सेल्फिंग का मतलब सीधा सीधा होता है एक ही जनरेशन में ऑब्टेन होने वाले दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस कराना. सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इन अ पर्टिकुलर सेम जनरेशन a male individual and a female individual again are crossed. So that is known as selfing. But this selfing, इसके जो भी रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं वही प्लांट में फर्टाइल मिलेंगे, लेकिन हमें एनिमल में या ह्यूमन में इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो हियर नाउ दे बिकम पैरेंट. नाउ इनके भी गैमीट्स बनेंगे और इनके जब गैमीट्स बने तो कैपिटल टी स्मॉल टी विच इज टू बी क्रॉस विथ कैपिटल टी एंड अगेन स्मॉल टी, फाइन. अब इसको जब मैंने इसके साथ क्रॉस कराया, पहले हम इस गैमीट को पकड़े और दूसरे पेरेंट के उस गैमीट के साथ क्रॉस कराया, तो क्या लिखा हमने, कैपिटल टी. फिर इस गैमीट का क्रॉसिंग हो सकता है इसके साथ हो जाए. ये हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, हर तरह की प्रोबेबिलिटी की कौन सा कोई सा भी गैमीट एक बार में या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई से भी दो गैमीट फ्यूज हो सकते हैं, इधर एक पेरेंट के गैमीट दूसरे पेरेंट के गैमीट्स के साथ. हियर वी हैव रिटन कैपिटल टी स्मॉल टी सिमिलर this way, and this results obtained as we got 3 tall and 1 dwarf. So the phenotypic ratio arised. phenotypic मतलब जो उसको नजर आ रहा था, जो दिख रहा था F2 जनरेशन में. तो ये जो F2 जनरेशन हमने ऑब्टेन करी है, दिस F2 जनरेशन जो ऑब्टेन करी है, इस F2 जनरेशन में हमें 3 तो टॉल मिले एंड 1 ड्वार्फ मिला. 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ. सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 1:2:1. दैट मीन्स 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी and 1 small t and small t. So this is the genotypic ratio in case of monohybrid cross. So this monohybrid cross is revealing again that 3 tall and 1 dwarf appear in the next generation. That means again the majority of the dominant trait is appear and the majority of the recessive trait is lesser. So we can say the dominant trait always expressing in each and every generation and with the major population or high frequency, but the recessive trait has skipped the generation and whenever they are appearing with the less frequency or less population. So this is about the monohybrid cross. Now this monohybrid cross, after this monohybrid cross, he also performed 2 type of cross, that is test cross and back. Basically he performed a particular type of cross known as back cross. That back cross is related to this monohybrid cross only. Now that back cross and test cross we will going to discuss in the next class. Along with that we will also going to discuss the dihybrid cross.